Okay, so I'm live. Assalamu alaikum everyone. This is Yasir Zahir YZ live again with the third episode of Live with YZ. As you know, every Wednesday at 8 p.m. I invite a new mental health expert and we discuss about those mental health issues which we not find the resources and the people to talk and to look at. So I try to ask those questions which are in your head. So I will be asking those questions again with our guest today. And who is the guest? Today's guest is a clinical psychologist and our esteemed member of segment panel, Miss Tuba Shahood. So we will be discussing about anger. What is anger? What causes anger? And how can we control anger before it controls us? So the topic is anger management today. And also, as last week we announced one lucky viewer that won one free session with Maria Varis. So today again we'll be announcing one lucky viewer who will get one free session with Tuba Shahood. Yes, so stay tuned and keep watching and keep sharing. So okay, what is anger? Anger is a completely normal, usually healthy human behavior or human emotion. But when it gets out of control and becomes destructive, it can lead to problems. Problems at work or in your personal life, and your entire life's quality is affected. So when you get angry, your blood pressure and your heart rate, rise, and your world becomes dark, and your focus is on that person or that object at which you are angry. You cannot see anything else, and in that state, you take some decisions which you regret later. And because you did not realize the real situation, you were not in control, or you were taking decisions unconsciously. So that is why it is said that if you are patient in one moment of anger, you will escape 100 days of sorrow. So how to be patient in that moment? So we will ask Tuba about it. So without further delay, let's invite Tuba online. Assalamu alaikum, Tuba. How are you? I'm good. How are you? I'm good. Thank you. So today we are going to talk about anger management. Aren't you angry today? No, not at all. Okay, wonderful. So Tuba, there are lots of questions I have received by our followers, and there are some other questions which are in my head as well. So shall we begin? Yes, sure. Okay. Acha, Tuba, tell me, this is a very basic question. How do I know if I have anger issues? How can I identify that anger in myself? You have to start looking for the behavior patterns. Okay, if you're criticizing a lot, and if you are blaming others and the situations for everything that has happened with you, then it means there may be some problem that you have anger issues which you are suppressing. So it's better to not suppress it and express it in a healthy way, or at least realize it so that you know when to seek help. Okay. So what are those anger triggers? Shed some light on those triggers. So once someone is getting angry, so we would know, okay, now those triggers are, those points are triggered. So what are those anger triggers? Can you shed some light on that? Anger triggers depends. वो हर situation and हर person के हिसाब से they can vary, of course.
फॉर मी मे बी मुझे इनजस्टिस पे ज़्यादा लेट्स से मैं एग्रेसिव हो जाती हूँ या मेरे लिए वो चीज़ टॉलरेबल ना होती हो, एंड फॉर अदर पीपल मे बी उनके लिए कोई और चीज़, उनके लिए चीटिंग, अगर उनके साथ कोई चीट करे या इस तरह की कोई चीज़ हो तो वो उसके ऊपर ज़्यादा एंग्री हो जाते हो. सो इट डिपेंड्स कि ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है. आपको अपने ट्रिगर्स रियलाइज करने पड़ते हैं कि कौन सी सिचुएशंस हैं जब आपको ज्यादा गुस्सा आता है, जब आप ज्यादा एंग्री हो जाते हैं. Okay, right. So it depends on person to person के हर शख्स के Yeah. triggers different हो सकते हैं. Right. Exactly. तुबा ये बताइएगा कि what is the impact of anger on your mental health? And obviously, once it affects your mental state, it is going to affect your physical state as well. तो उसके बारे में Yes. थोड़ा सा बताइए कितना इम्पैक्ट आता है एंगर का. अच्छा, एंगर वैसे एज यू सेड एज वेल कि एक हेल्दी इमोशन होता है, एंड इट्स नॉर्मल टू फील एंग्री एट टाइम्स बिकॉज वो हमें प्रिवेंट करता है कि व्हाट इज नीडेड, हमें जब अपनी हाउ टू डिफेंड आवरसेल्व्स एंड हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, जब हमें गुस्सा आता है एटलीस्ट हमें एक्सप्रेस करना आता है कि व्हाट वी आर फीलिंग. बट अगर ये चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है आपसे, और वो आपको पता कैसे चलता है कि आप को देखना पड़ता है कि कब आपका आउटबर्स्ट हो रहा है, आप कितना शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, आप कितना जल्दी गुस्से में आ रहे हैं, और या कितना ज्यादा आप दूसरों को या सिचुएशंस को ब्लेम कर रहे हैं किसी भी चीज के ऊपर. और डिपेंड्स के क्या रिएक्शन, आपका फिजिकली रिएक्शन क्या आ रहा है किसी भी चीज के ऊपर ना. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, अगर ये चीज बढ़ रही है, लेट्स से आपको ज्यादा गुस्सा आने लग गया है किसी भी चीज के ऊपर, तो डेफिनेटली वो आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर और आपकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करेगा. मेंटल हेल्थ पे वो कैसे इम्पैक्ट कर सकता है कि यू फील स्ट्रेस्ड आउट, यू फील डिप्रेस्ड, ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आप इतना गुस्सा करेंगे तो ऑफ कोर्स आपके साथ जो इर्द गिर्द लोग हैं वो प्रोबेबली आपसे उतने ज्यादा क्लोजनेस फील ना करें, इतना ज्यादा शेयर ना करें आपसे बातों को, बिकॉज दे फील स्केयर्ड टू, जिसकी वजह से आप लोनलीनेस का शिकार होंगे, आपको डिप्रेशन होगा, आपको स्ट्रेस फील होगा, आपकी एंजाइटी बढ़ेगी. ये होंगे आपके मेंटल इम्पैक्ट जो आपके ऊपर आता है. फिजिकल इम्पैक्ट क्या आता है? यू विल हैव हेडेक्स, मे बी हाई ब्लड प्रेशर, और इस तरह से बहुत ज़्यादा या तो हार्ट पैल्पिटेशंस होती हैं, लोगों को स्टमक डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं. सो ये होते हैं आपके फिजिकल इम्पैक्ट. सो इन बोथ वेज ये हमें हार्म करता है. सो वी हैव टू कंट्रोल इट बिफोर इट कंट्रोल्स अस. Yes, absolutely. So we have to control it before it controls us, और वहाँ पे फिर चीजें बड़ी डिस्ट्रक्टिव हो जाती हैं अगर एंगर आपको कंट्रोल करना शुरू कर दे. That's perfectly all right. So this is for the followers. You can send in your questions if you want to ask Tuba. So I'm getting some questions here as well. Okay. The next question, Tuba, इसके आपने तो बता दिया कि mental health और physical health को कितना ये impact करता है. तो इसमें थोड़ी सी टेक्निक्स हमें बताएं in detail कि can we control our anger इससे पहले कि वो हमें control. How can we do that? अच्छा, इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू डू, ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं, इफ यू फील एंग्री, अगर आपको हर सिचुएशन पे या हर बात पे गुस्सा आ रहा है, एंड समटाइम्स इट हैपेंस अनएक्सपेक्टेडली, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि आप इस सिचुएशन में एंग्री हो जाएंगे, बट द सिचुएशन मेड यू एंग्री समहाउ. सो ऐसी सिचुएशंस में आपके लिए ऑफ कोर्स इतना इजी नहीं होता उसको कंट्रोल करना, बट वी कैन से इट्स नॉट इम्पॉसिबल एज वेल, इट्स डूएबल. इट्स नॉट लाइक कि आपको जब गुस्सा आए आप सिर्फ तब उनको प्रैक्टिस करें. यू हैव टू प्रैक्टिस इट एवरी डे, क्योंकि गुस्सा एज आई सेड कि वो अनएक्सपेक्टेडली किसी भी सिचुएशन में आपको आ जाता है, और आपका रिएक्शन जो होता है वो एकदम से आता है. इट वॉज नॉट ऑफ कोर्स प्री प्लान ना. सो वो आप कैसे रोक सकते हैं कि वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के ऊपर जो रिएक्शन आ रहा है वो रिएक्शन कैसे रुक सकता है, इसके लिए आपको यू हैव टू प्रैक्टिस डेली.
कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको? यू हैव टू रियलाइज एंड इवेल्युएट योर ओन थॉट्स. आपको अपने लिए देखना है कि व्हाट आर द ट्रिगर्स फॉर यू, व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू एंग्री, दैट मेक यू फील सैड और समथिंग. क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि एंगर जो होता है वो एक इमोशन होता है आपके अंडरलाइंग और इमोशंस का. It's like if you are feeling sad, or maybe if you are not okay, if you have been stressed out for so long, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका मेंटल स्टेट इतना एबल नहीं होता है कि आप हर चीज को इजीली डाइजेस्ट कर सकें, एंड द सिचुएशंस मेक यू एंग्री एट टाइम्स. तो आपको जैसे एंगर को आप इस तरह समझें कि आइसबर्ग आपने देखा है, तो आइसबर्ग का जो अपर पार्ट होता है वो कहलाता है एंगर, और उसका जो नीचे पार्ट होता है जो हमें नहीं दिख रहा होता है, जो पानी के अंदर होता है, सरफेस पे होता है, विच इज हिडन टू अस, वो होते हैं वहां पे होते हैं हमारे और इमोशंस, जिसमें गिल्ट भी हो सकता है, जिसमें डिप्रेशन भी हो सकता है, जिसमें लोनलीनेस भी हो सकती है, जिसमें कुछ भी हो सकता है. मतलब देयर आर मेनी इमोशंस, देयर आर मेनी फीलिंग्स, मेनी सिचुएशंस जो कि हिडन होती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड दैट हिडन फीलिंग और दैट हिडन इमोशन जो कि हमारे अंदर डीप डाउन होता है. वी हैव टू डिग इट आउट. जब हम उस पर काम करेंगे, जब हमें ये पता होगा कि ये सिचुएशन है या ये चीज़ है जो मुझे गुस्सा दिलाती है, देन वी हैव टू थिंक हम इसको कैसे इससे बच सकते हैं या इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. ऑफ कोर्स जो चीजें आपके, कुछ चीजें होती हैं जिस पे आपका कंट्रोल होता है, एंड देयर आर सिचुएशंस जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता, जो एक्सटर्नल होती हैं, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. तो उस सिचुएशंस में आप क्या करते हैं? एक तो डीप ब्रीदिंग बहुत हेल्प करती है आपको. रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस होती हैं, जिसमें से प्रोजेक्टिव मस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज हैं अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स. इसके अलावा आपको जो भी सूटेबल लगे, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन. तो आप देखें, ऑडियोज होती हैं, वीडियोस होती हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की और रिलैक्सेशन टेक्निक्स की, कि आप कैसे अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं. इट जस्ट टेक्स 5 मिनट्स और 7 मिनट्स टू जस्ट काम योर सेल्फ डाउन. और उससे पहले आप हैं और आप उस हुए हैं, वो चीज़ आपको लेट से गुस्सा दिलाती है, तो और आपका उसकी वजह से मूड पे इम्पैक्ट आया है, जो कि पॉसिबल मुमकिन है कि आप एक पार्टी में जाएं तो आपका वहां जाके भी, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक चीज पे एंग्री आप होंगे, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आप वहां जाके उस जो डायरी कीपिंग जर्नल, ये बहुत हेल्दी होता है, बहुत हेल्पफुल होता है इन सो मेनी वेज. मतलब एंगर इश्यूज तो इससे रिजॉल्व होते हैं, बट इट हेल्प्स यू टू रियलाइज योर ओन इमोशंस एंड you get to know yourself better in this way to write a journal. ये आपको बहुत हेल्प करता है. दूसरा, अगर आपको जस्ट काउंटिंग, काउंटिंग करें, या अल्फाबेट्स होते हैं, आप उनको ABCD पढ़ना, बैकवर्ड उसको स्टार्ट कर दें पढ़ना, तो वो मूवमेंट जो होता है ना एकदम से गुस्से वाला, वो फॉर द टाइम रुक जाता है. आप ये सारी चीजें कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जो आप फौरी तौर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और देने. Can you hear me? Yes, Tuba. Okay. Thank you, Tuba, so much. Okay, मेरे पास कुछ क्वेश्चन जो फॉलोअर्स ने पूछे हैं मुझसे. One of the question is by Mrs. A. इन्होंने अपना नाम anonymous रखा हुआ है. She's asking, I think my husband has an anger problem. He loses his temper every week. He yells at me and curses about small matters, such as leaving a light on or putting something on the wrong shelf, or leaving the top of the milk bottle. The examples diye. How can I get him to address his anger problem, or is this normal behavior? So आगे इन्होंने लिखा है only been married for 6 months. So what do you recommend her?
No, it's not a normal behavior, of course, क्योंकि again वही कि यही छोटे छोटे triggers you were asking कि how can someone know कि उनको गुस्से का problem है, और if you are seeking for some friendship or in a partner तो उसमें भी ये चीज़ helpful करती है. आप देखें कुछ signs होते हैं जो लोग जो होते हैं show करते हैं अपने behavior से. इन्हीं छोटी छोटी बातों के ऊपर, कोई छोटी सी सिचुएशन के ऊपर एक नॉर्मल का रिएक्शन क्या, और एक वो आदमी जो बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज जिसके साथ हैं, तो उसका रिएक्शन बहुत डिफरेंट होगा एक नॉर्मल सिचुएशन के अंदर कंपैरेटिवली टू अदर पीपल. ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ साइंस होते हैं जो आपको बताते हैं कि द पर्सन माइट हैव एंगर इश्यूज. तो आप उनको कंट्रोल किया जा सकता है, एंड जिस टाइम पे गुस्सा होता है उस टाइम पे नहीं. द बेस्ट वे टू डील विद दिस सिचुएशन इज कि आप अगर कोई गुस्सा हो रहा है तो आप उस टाइम उस रूम से चले जाएं, और अगर इफ यू नीड हेल्प तो आई एम देयर. इट्स नॉट लाइक कि मतलब कुछ गलत नहीं है इसमें. नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें जब वो गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए तब उस सिचुएशन के अंदर. Okay, Duba, my next question जो मुझे मिला है, that the first question was from a wife. Now this question is from a husband. So this is quite interesting. The husband's question is, my wife gave me an ultimatum 2 days ago. She said if I didn't get help with dealing with my anger, she said she would leave me. What should I do? अच्छा, अभी ये पता कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं या that's a separate case? We don't know about it. So this guy name is Aslam. So he mentioned his name. Okay. So अगर उनको ये ultimatum मिला है and the relationship is important for him, so of course he should seek help now. There might be some problem or there might be something else. Maybe उनका problem ना हो, कभी कभी ऐसा होता है अगले person का भी problem हो सकता है कोई. But in both ways, जब तक आप help नहीं लेंगे, जब तक आप किसी से discuss नहीं करेंगे, how should you know कि कुछ problem चल रहा है, आप उसको resolve कैसे करेंगे? जब तक हम बात नहीं करते, हम problem के solution तक नहीं पहुंच पाते. Okay, great. अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल देखा होगा इन करंट टाइम्स द किड्स आर रियली वेरी एग्रेसिव. बहुत छोटी छोटी चीजों के ऊपर दे गेट एंग्री, बिहेवियरल इश्यूज उनके आ जाते हैं और उनका एंगर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है ऑन डिफरेंट छोटी छोटी चीजों पर. तो आप कैसे देखते सिचुएशन को कि इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल? पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल, द करंट टाइम्स, हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन? कोई एक चीज हम लेबल नहीं कर सकते सिचुएशन के साथ. देयर कैन बी मेनी रीजंस. अच्छा, बच्चों में भी जो एंगर इश्यूज होते हैं, या बच्चे अगर टू सम एक्सटेंट अगर बच्चे गुस्सा निकाल रहे हैं या कोई भी एरोगेंट बिहेवियर शो कर रहे हैं, टू सम एक्सटेंट इट इज नॉर्मल फॉर किड्स. ठीक है, अक्सर बच्चों में होता है कि उनकी आप चीजें शेयर, कोई और बच्चा आके शेयर करेगा उनकी चीजें, तो वो एकदम से या तो उनको हिट करते हैं या एकदम टैंट्रम्स दिखाते हैं, विच इज क्वाइट नॉर्मल. कुछ बच्चे नहीं होते, शायद बहुत ज्यादा शेयरिंग नेचर के नहीं होते, या कुछ बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल नेचर के नहीं होते. तो इन केसेस के अंदर कभी कभी बच्चे दिखाते हैं, टू सम एक्सटेंट इट इज नॉर्मल. पर अगर इफ यू फील लाइक कि ये ज्यादा हो रहा है, ये बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और लोगों से ज्यादा ये होता है कि आप देखें कभी कभी बच्चे चीजों के ऊपर भी अपना अग्रेशन निकाल रहे होते हैं, किसी चीज को हिट कर देंगे, जाके वही चीज तोड़ देंगे, कभी गुस्से में आके, जिद में आके करते हैं, विच इज नॉट नॉर्मल. देन यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या रीजन क्या है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, बच्चों के साथ डील करना इसलिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते. दे डोंट नो, अगर उनको अपने इमोशंस की भी पहचान नहीं होती. दे डोंट रियलाइज देयर ओन इमोशंस, दे डोंट रियलाइज देयर ओन फीलिंग्स. इफ दे आर गोइंग थ्रू समथिंग, दे कैन नॉट टेल देयर पेरेंट्स के हमें ये फील हो रहा है.
तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू टॉक टू योर चिल्ड्रन, उनको थोड़ा सा इमोशंस को, थोड़ा सा फीलिंग्स को समझना सिखाएं थ्रू पिक्चर्स एंड एवरीथिंग। उसमें वर्कशीट्स होती हैं, पिक्चर्स होती हैं जो कि बहुत इजीली नेट पे अवेलेबल होती हैं। तो बच्चों के साथ जब भी आप बैठें, एक तो उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस करें, ओपन एंडेड डिस्कशंस करें। सेकेंडली आप उनको इस तरह की थ्रू पिक्चर्स या इस तरह की चीज़ों से आप उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये इमोशंस होते हैं, ये चीज़ें होती हैं। इसके कुछ कुछ कॉजेज, अब हर घर में कॉजेज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। मे बी कोई उनके साथ फिजिकल या सेक्सुअल या कोई भी किसी किस्म का इमोशनल ट्रॉमा से वो गुजरे हों बच्चे, जो कि वो बता ना पाते हो, लेकिन उसके एक्शन बिहेवियर के तौर पर उन्होंने क्या किया हो, डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर वो अपना गुस्सा दिखाते हो। मोस्ट लाइकली ऐसा भी हो सकता है। कहीं पे क्या होता है, कोई इनजस्टिस बच्चों के साथ होता है, पेरेंट्स की तरफ से भी वो हो सकता है कभी कभी। फैमिली में कोई इश्यूज अगर होते हैं, बच्चे देखते हैं कि उनके पेरेंट्स आपस में लड़ रहे हैं या घर में लड़ाइयाँ होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो कि वो हेल्दी तरीके से नहीं रिजॉल्व हो रहे होते, तो वो एक गलत इम्पैक्ट डालते हैं बच्चे के ऊपर। इसी तरह से आजकल वीडियो गेम्स होते हैं और इस तरह के वायलेंट मूवीज होती हैं या वायलेंट एक्शंस होते हैं, वीडियो गेम्स होते हैं जो कि बच्चों के अंदर बहुत वायलेंस पैदा करते हैं। तो जब भी आप उनको कोई भी गेम दे रहे हैं, बच्चे गेम्स खेलते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, तो सुपरविजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो क्या चीज़ें देख रहे हैं, वो क्या चीज़ें आगे जाके सीख रहे हैं, क्योंकि जो वो देखते हैं वो वही करते हैं, उनके ऊपर वही इम्पैक्ट आता है। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू सुपरवाइज योर चिल्ड्रन कि वो क्या कर रहे हैं, वो किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, वो कितने लोगों से मिल रहे हैं और किन किन उनके क्या फ्रेंड्स हैं, उनका सोशल सर्कल पता हो आपको कि किस तरह के लोग उनके इर्द गिर्द है, कि किसी का कोई इन्फ्लुएंस उनके ऊपर आ रहा है। सो देयर आर मैनी मैनी रीजंस। हम किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते, ना टीचर्स को, ना पेरेंट्स को, ना सोसाइटी को। इट्स लाइक कि कोई भी रीजन हो सकता है और हर बच्चा डिफरेंट होता है। सो आप अपने बच्चे को बेहतर जानते हैं, आपके घर में क्या हो रहा है, तो आपको उस हिसाब से अपने बच्चे को डील करना है और उसको बताना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक टू योर चिल्ड्रन अबाउट मेंटल हेल्थ, अबाउट दीज थिंग्स। हमारे यहाँ आई डोंट नो, जो सोसाइटी का एक प्रॉब्लम है, बच्चों से हम ये बात नहीं करते, हम बच्चों से छुपाते हैं। तो हम बच्चों को जब इनसे में इन्वॉल्व नहीं करते तो दे डोंट नो एनीथिंग। फिर क्या होता है कि अगर वो किसी चीज से गुजरते भी हैं तो वो उसका रिएक्शन आपको शो करते हैं, दे नेवर टेल यू व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। सो कोई भी प्रॉब्लम है, आप उनको ये जो मेंटल हेल्थ के बारे में आप उनको अवेयर करना स्टार्ट करते हैं बहुत अर्ली एज से, और उनको ये मीडियम देते हैं कि इट्स ओके टू सीक हेल्प, टू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स, टू टॉक अबाउट योर इमोशंस। इन दिस वे हम आपको हेल्प कर सकते हैं। इन दिस वे यू विल बी अ बेटर इंडिविजुअल फॉर सोसाइटी। Okay, Tuva, thank you very much. There was one and there is another end. We talked about kids. Let me just talk about old people, the elders. When someone is dealing with old people, people in old age, they get angry, they get irritated on a small things. So, person of an old man or a woman is we call her or him a irritated person after 65 or 70 years of age. So, is there any other technique to deal with old people who are actually angry and they're dealing with their anger management problems? It's difficult to deal with these kind of people, of course, क्योंकि अगर कोई भी गुस्सा आपके ऊपर करता है, so it's very natural कि आपको भी गुस्सा आता है। आपका जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है बॉडी के अंदर, वो फॉरन अवेकन हो जाता है उस टाइम के ऊपर, एंड आप एकदम से एंग्री फील करते हैं, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल। लेकिन द थिंग इज कि वही मोमेंट होता है जब यू हैव टू कंट्रोल इट, क्योंकि अगर एक बंदा एंगर प्रॉब्लम से गुजर रहा है एंड रिटर्न में आप भी उसके ऊपर गुस्सा ही शो करेंगे, तो वो क्या होगा, उसका एंगर कंट्रोल नहीं होगा, बल्कि उल्टा आपको एंगर इश्यूज हो सकते हैं उससे, और वो बात जो होगी, जो सॉल्व अच्छे नोट पे भी शायद की जा सकती है, वो फिर बहुत बड़े उस पे चली जाती है, कॉन्फ्लिक्ट की तरफ चली जाती है। तो इन सिचुएशंस के अंदर यही होता है कि अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया है, इवन अगर ओल्डर पीपल होते हैं वो कुछ कहते हैं, तो आप उनको पलट के कुछ कह भी नहीं सकते। तो इन सिचुएशंस के अंदर जस्ट
टेक जस्ट बैक ऑफ, आप उस रूम से चले जाएं, फॉर द टाइम आप चले जाएं एंड काम योर सेल्फ डाउन। क्योंकि जिसके ऊपर गुस्सा निकाला गया होता है, जिसके ऊपर गुस्सा किया गया होता है, वो इंसान भी उस टाइम पे सफर कर रहा होता है ऑफ कोर्स। तो उसको भी अपने आप को कंपोज करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यकीनन आप इमोशनली हर्ट हुए होते हैं किसी के भी गुस्सा करने से, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट अदरवाइज आप अपनी थॉट रिफ्रेमिंग करें उस टाइम पे के ऊपर कि ये इसका प्रॉब्लम है, ये इसने मतलब इसकी जो इंटेंशंस थी वो डायरेक्ट मेरे ऊपर नहीं थी, इसने किसी और का गुस्सा भी मेरे ऊपर उतार सकता है। सो ये इसका इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू मी। तो जब आप इस तरह से अपने थॉट को खुद ही रिफ्रेम करेंगे, खुद ही आप अपने जो आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जब आप उनको पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे, तो अल्टीमेटली जो आपका गुस्से का लेवल है वो कम हो जाएगा और जो बर्दाश्त वाला लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आपके अंदर थोड़ी सी कैपेसिटी आ जाएगी कि आप अगले की बात सुन सकें या एटलीस्ट उसको काम डाउन होने का मौका दें। वंस दे काम डाउन, फिर आप जाके उनसे बात करें और उनसे पूछें कि नाउ टेल मी कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, हुआ क्या है, या व्हाट मेड यू एंग्री, व्हाट इज द सिचुएशन। ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कि क्या बात हुई है, किस वजह से हुआ है, क्या पर्टिकुलरली किस बात के ऊपर इतना गुस्सा आया है कि ये हुआ, ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पूछना। इट्स नॉट लाइक कि क्यों गुस्सा किया, क्यों किया। अगर इस तरह बात होगी तो बात सॉल्व नहीं होगी। अगले इंसान को कैसे ये आप ट्रस्ट दे सकते हैं कि हाँ समवन इज लिसनिंग, कि आप उससे इस तरह से क्वेश्चंस पूछें, आप उसके साथ एम्पैथाइज करें कि आई फील यू, आई अंडरस्टैंड यू, कि अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो क्यों आ रहा है, मतलब आप उससे रीजंस पूछें कि मैं समझना चाहता हूँ कि ये किस बात की वजह से इतना गुस्सा आया है, या क्या चीज़ है पर्टिकुलरली, वो क्या सिचुएशन है जो आपको इतना एंग्री करती है। नेक्स्ट टाइम आप अवॉइड करें कि वो सिचुएशन उनके लिए पैदा ना करें, स्पेशली फॉर ओल्डर पीपल मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। और क्योंकि उनके लिए मुश्किल होता है उनको समझाना, और उनके लिए उनके ऊपर टेक्निक सप्लाई करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो अपनी उम्र के उस हिस्से में होते हैं कि वो अपना लाइफ स्टाइल चेंज नहीं कर सकते। तो आपको अपना लाइफ स्टाइल जो होता है थोड़ा सा करना पड़ता है उनके लिए। मैं नहीं कहूँगी चेंज, लेकिन थोड़ा सा आपको ज्यादा एक्सेप्टेबल होना पड़ता है ऐसे लोगों के लिए। ओके वंडरफुल वंडरफुल थॉट्स तुबा, जबरदस्त। आई होप कि जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो भी लर्न कर रहे होंगे हाउ टू डील विद ओल्डर पीपल एंड किड्स एज वेल। तो आपने हर एंगल से बोथ एंड्स का भी बता दिया कि किस तरीके से हमें डील करना है। अच्छा, वन लास्ट थिंग तुबा, एक मैं आपका एक मैसेज लेना चाह रहा हूँ, स्पेशली दोस पीपल, जैसे हम बाहर जाते हैं, वी गो टू रेस्टोरेंट्स, वी गो टू शॉपिंग मॉल्स, and on roads traffic में we see a lot of angry people, किसी भी छोटी छोटी बात पे they get angry, किसी की गाड़ी लग गई तो they get angry and firing। तो कहता हूँ कि we are an angry nation। हमारे सारे जो जितने गुस्से में रहते हैं, तो अक्सर मैं कहता हूँ अपने दोस्तों से कि यार कभी हंस भी लिया करो। तो इस तरह की चीज नहीं होती है। तो आप डू यू हैव एनी मैसेज फॉर दोस पीपल जो हर वक्त गुस्से में रहते हैं, ऑफिस में, घर में, रोड के ऊपर? एनी मैसेज लास्टली, कोई अच्छा सा मैसेज? आई वुड लाइक टू से जो लोग स्पेशली पाकिस्तान में रहते हैं, सो इट्स वेरी नेचुरल कि आपको फ्रस्ट्रेशन और आपको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशंस ऐसी होती हैं। आप बाहर निकलते हैं, कोई छोटी छोटी सी भी चीज़, एज यू सेड कि किसी की गाड़ी लग गई, कुछ हो गया, विच इज क्वाइट नॉर्मल। यहाँ पे हर दूसरे दिन ये हो रहा होता है, और जिसके साथ होता है ऑफ कोर्स ही फील्स इरिटेटेड, ही फील्स फ्रस्ट्रेटेड। सो इट्स वेरी कॉमन in in Pakistan, of course. The thing is कि जो आपने करना है वो ये करना है डेली बेसिस के ऊपर, जस्ट ट्राई टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। आप जहाँ रह रहे हैं, वेयर यू आर लिविंग, यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस, तो आप उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। जब आपके अंदर थोड़ी सी एक्सेप्टेंस आना शुरू होती है, तो खुद ब खुद आपका जो वो फ्रस्ट्रेशन लेवल होता है या अग्रेशन वाला जो लेवल होता है वो भी थोड़ा सा कम होना स्टार्ट होता है। सो अगर ये नेगेटिव ऑफ कोर्स होता है क्या, जो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है माइंड के अंदर, तो वही आपको गुस्सा दिलाती है। तो उस नेगेटिविटी को सबसे पहले खत्म करना चाहिए। आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप डेली बेसिस के ऊपर जो है एक छोटी सी एक्सरसाइज है जरूर करें,
Just take a paper and pencil and write down 3 things you are grateful for. डेली बेसिस के ऊपर आप ये करें। कोई पूरा दिन में सब कुछ बुरा होगा, पर कोई 3 चीजें तो ऐसी होंगी जिसके लिए आप ग्रेटफुल होंगे, कुछ तो ब्लेसिंग्स होंगी ना आपके लाइफ के अंदर। जस्ट राइट इट डाउन। जब आप वो लिखेंगे या एटलीस्ट उसके बारे में सोचेंगे, तो वो जो जहन आपका नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है वो एकदम से डाइवर्ट होके थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। आप अपनी सिचुएशन में, अपनी लाइफ में से जब पॉजिटिविटी निकालना स्टार्ट करेंगे, तो आपके जहन जो होगा ना थोड़ा सा काम रहेगा। और फिर जब आप काम रहेंगे तो वो गुस्सा भी कम आएगा, थोड़ा स्माइल भी कर लिया करेंगे। सही है। थैंक यू वेरी मच तुबा, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। और आई होप के आई हैव आस्क्ड ऑल दोस क्वेश्चंस जो हमारे फॉलोअर्स के जहनों में थे। मैंने बड़े हम्म। कॉमन क्वेश्चंस किए जो कि नॉर्मली लोगों के जहनों में होते हैं, लेकिन उनको मौका हम्म। नहीं मिलता इस तरह के सवालों के जवाब ढूंढने का। तो हम्म। थैंक यू वेरी हम्म। मच टाइम, एंड इंशाल्लाह वी विल इनवाइट यू अगेन सम अदर टाइम। थैंक यू सो मच। यस। ओके, थैंक यू सो मच। हाफिज। ओके।